all? I hope you're doing really great in your life. So I'm back with another video for you all, and this time it is a new chapter for class 8 specifying natural vegetation and wildlife, and we are going to study about a lot of things, a lot of different types of trees and species, and of course wildlife. But before starting any chapter, we have a small prakriya, enlightenment की प्रक्रिया जिसे हम follow करते हैं. So सुनते हैं आज का positive thought. सो आज का ज्ञान है कि लाइफ में ना जिस भी चीज़ से डर लगे वो ज़रूर करनी चाहिए, ताकि एग्जैक्टली 5-10 साल बाद ये रिग्रेट ना हो कि काश पहला स्टेप ले लिया होता. काश काश काश. तो इस काश को हटाने के लिए लाइफ में जिस भी चीज़ से डर लगे, जस्ट टेक अ स्टेप, गिव इट अ शॉट. जो होगा देखा जाएगा. कुछ नहीं तो एक्सपीरियंस मिलेगा, एटलीस्ट यू विल लर्न समथिंग. तो छोटी सी एडवाइस ये है कि जिस भी चीज़ से डर लगे वो चीज़ ज़रूर करनी चाहिए. थैंक यू. Okay, so with this positive thought in our head, we are going to talk about the chapter Natural Vegetation and Wildlife. And while talking about the chapter Natural Vegetation and Wildlife, आप पहले ये समझते हैं कि Natural Vegetation और Wildlife actually होते क्या हैं. देखो, जब हम Natural Vegetation की बात करते हैं, हमने बहुत ढेर सारे तरीके के plants देखे हुए हैं, trees देखी हुई हैं, different species देखे हुए हैं. तो जब हम different species of plants या different plants की बात करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं Natural Vegetation. And why natural? क्योंकि नेचुरली होता है सब कुछ. ओके, एंड मोर देन दैट क्योंकि नेचुरली होता है. बट आज के टाइम पे ना मॉडिफाइड और नेचुरल प्लांट्स वगैरह जो होते हैं ना, उन सबको टुगेदर भी हम नेचुरल वेजिटेशन में ही इंक्लूड करते हैं. सो नाउ वी बेसिकली नो दैट व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन. ओके, द प्लांट्स दैट ग्रो नेचुरली आर नोन एज आर कम्स अंडर द हेडिंग नेचुरल वेजिटेशन. बट जब हम वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं, रिमेंबर वन थिंग, वाइल्ड लाइफ केवल और केवल एनिमल्स नहीं होता है. वाइल्ड लाइफ इंक्लूड प्लांट्स, एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स जो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, उनको हम बोलते हैं वाइल्ड लाइफ. ओके, नाउ सी, नेचुरल वेजिटेशन एंड जो वाइल्ड लाइफ है ना, दे आर इन अ वेरी नैरो जोन. और वो नैरो जोन को बोलते हैं बायोस्फीयर. और बायोस्फीयर क्या होता है? वी ऑल नो अबाउट द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, राइट? वी ऑल नो अबाउट दैट. तो वो पोर्शन, वो जोन जहाँ पे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर मिलते हैं और इंटरैक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर. सो बेसिकली वी नो नाउ कि द नैरो जोन वेयर द वाइल्ड लाइफ एक्चुअली परसिस्ट इज नोन एज बायोस्फीयर. See, my dear students, now all the organisms, whether they belong to a plant kingdom or an animal kingdom, कोई भी organism जो चाहे वो plant kingdom से हो या animal kingdom से, वो हमेशा एक दूसरे से interact करते हैं, वो एक दूसरे पे interdependent होते हैं. जैसे for example cow eats grass. ठीक है, तो cow being the part of the animal kingdom and grass being the part of the plant kingdom, they both are interdependent on each other and they both are in a way dependent also on each other. Okay, and they interact. So this interaction between the organisms, whether belonging to the plant kingdom or to the animal kingdom, is known as the ecosystem. So the entire system where this interaction takes place between the members of the plant kingdom or the animal kingdom or the organisms is known as ecosystem. My dear students, जो natural vegetation और जो wildlife होता है, they are very important, right? And they're also useful for natural resources. But when we talk about vegetation, see, क्योंकि we are starting with natural vegetation, so natural vegetation we know are the plants which grow naturally are called natural vegetation. Comes under the heading of natural vegetation. जब हम natural vegetation की बात करते हैं, तो it is quite helpful for us. जैसे for example oxygen. It provides us with oxygen. Okay, so I can say, see, now I'm saying natural vegetation also helps us in providing oxygen. Okay, it protects the soil from leaching, provides us with wood, and also they provide with a lot. Actually, they store water underground, and also they help the soil from leaching, and they provide us with a lot of products, herbal products, right? Starting with the distribution of natural vegetation. See, natural vegetation can be broadly classified into three main parts: the forest, the shrubs and the grasslands. So starting with the forest होता क्या है basically, उससे start करते हैं.
Forests are basically the cluster of trees, the group of trees that grow together. They are very close to each other. And forest जो है generally hot and humid climate में find किया जाता है. और अगर फॉरेस्ट की एक्चुअली बात की जाए तो फॉरेस्ट में जो ट्रीज होती है वो इतना क्लोज होती हैं जैसे कि जो उनकी जो कैनोपीज होती है, मतलब द टॉप पोर्शन ऑफ द ट्रीज, दे टच ईच अदर. ओके, सो दिस इज अ फॉरेस्ट इन अ ट्रू सेंस. एंड देखो, फॉरेस्ट या कोई भी प्लांट ना एक्सट्रीम हॉट या एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस में नहीं ग्रो कर सकते. तो हमें फॉरेस्ट जो है एक्सट्रीम हॉट जो जगह है जहाँ पे एक्सट्रीम हॉटनेस या एक्सट्रीम कोल्डनेस है वहाँ पे हमें वो फॉरेस्ट नहीं मिल सकते हैं. एंड फर्दर फॉरेस्ट भी जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं. फॉरेस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन एंड द टाइगर रीजन. तो ऐसे याद करना, TTT, that is the forest of the temperate zone, forest of the tropical zone and forest of the taiga region. तो ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन एंड टाइगर रीजन, ये तीनों ही एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं. सो आई एम गोइंग टू जस्ट स्पेसिफाई और हाईलाइट फ्यू रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दीज रीजन. सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द फॉरेस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन. जब हम फॉरेस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन की बात करते हैं तो एक बात हमेशा याद रखना, यहाँ पे एवरग्रीन और डेसिडुअस दोनों तरह की ट्रीज मिलती है. और एवरग्रीन और डेसिडुअस किस टाइप की ट्रीज होती है ना, अगर नहीं पता है कॉमेंट डाउन बिलो, आई एम गोइंग टू आंसर दैट, एल्स आप लोगों को पता होगा. सो हमें फॉरेस्ट ऑफ ट्रॉपिकल रीजन में हमें 2 तरीके की ट्रीज मिलती हैं एंड दैट इज द एवरग्रीन एंड द डेसिडुअस. एवरग्रीन ट्रीज हमें मिलती हैं कोस्टल रीजन में, डेसिडुअस ट्रीज हमें मिलती हैं मॉनसून रीजन में. ओके, और यहाँ पे जो ट्री की स्पीशीज़ है वो है रोज वुड, आयरन वुड, एबनी, माहोगनी, इस तरीके की यहाँ पे ट्री स्पीशीज़ होती हैं. और जो मेन ट्रीज जो यहाँ पे फाउंड की जाती है वो है फॉर एग्जाम्पल साल एंड शीशम etc. and also sandalwood. Now talking about the forest of the temperate region, यहाँ पे जो है deciduous trees मिलती हैं which shed their leaves generally in the autumn season. एंड यहाँ पे कुछ कुछ जगहों पे deciduous trees जो है रिप्लेस हो जाती हैं coniferous trees से भी. सो बेसिकली वी कैन से 2 तरीके की ट्रीज मिलती हैं, deciduous एंड coniferous, कहाँ पे टेम्परेट रीजन में. ओके, एंड ऑल्सो यहाँ की जो मेन ट्रीज हैं वो है ओक, एश, एल्म, पॉपुलर, ये सब जो है ट्रीज हैं. Basically you don't need to go in extreme details of this portion. You can actually know some few things about it, like the types of trees and the main trees or the tree species found over here. About the forest of the taiga region, यहाँ पे जो है coniferous forest होते हैं. Basically coniferous forest are evergreen trees, tall and needle shaped leaves, and also कहीं कहीं पे deciduous trees भी मिलती हैं, for example larch. एंड इसकी जो टाइगर रीजन की जो मेन ट्रीज हैं वो इंक्लूड करती हैं डॉगलेस फर, स्प्रूस, रोजवुड एक्सेट्रा. इट फॉर द पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर. आई होप यू लव द वीडियो एंड थोड़ा आपको समझ में आया होगा. एंड इफ देयर आर एनी डाउट्स प्लीज कमेंट डाउन बिलो. आई एम गोइंग टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस. एंड ऑल्सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. लॉट्स ऑफ लव टू यू. प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. यू ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड फॉर योर सेल्फ ऑल्सो. सो स्टार्ट लविंग योर सेल्फ एंड बिफोर पुटिंग एनी वन एल्स इन योर लाइफ, स्टार्ट putting yourself first in your life. Think about you also. Think about your surroundings, yourself, and the different ways in which you can love yourself. So yeah, take care everyone. Bye and lots of love.